So in this video we will study about SQL. So let's see some quick introduction. So EF Cod is a guy who proposed SQL. So here um for SQL relational model is used. So in this our data is stored in the form of tables, and then language which help us to retrieve data is SQL. So then later from this keywords, all vowels has been removed. So vowels here are e, u and e. So whatever remains is s, q and l. So full form of SQL is a structured query. Q stands for query and l stands for language, structured English query language. Again, then rest is time pass. So okay, so now we will see what is schema. So schema is grouping all logical objects together and not sharing with their info with another schema unless required. So, like suppose in a company, all schemas will be a finance, HR, and marketing team. So, it finance team doesn't need to share their data with HR team. Or suppose in a company, developers doesn't need to share their data, that what they are what they are creating and all, with HR. And HR doesn't need to enclose salary which they track of all employees to the development team, like that. So we can group them together, and that is called schema. uh, See, we do this because people working in finance department doesn't need to share any data or access with HR department. So syntax to create schema is create schema name, and then it is not compulsory. That's why I've written in square brackets. Authorization owner name means to whom we have to give access. So let's see example. So example is create finance. So finance schema is created, and then authorization, who we are giving access, or who is owner of this, who can manage this finance, is Ravi. Again, this grant command is used. See, this is just overview of uh, who can have access and all. So no, understanding this command initially is not necessary. We'll see this later. So just now see for understanding some concept of schemas. So grant select on finance star to user one means we are giving access of select command um to select command. We are giving access of using select command in finance schema to user one means every record in finance table can be tracked by user one. Select command is used to retrieve data. So we will see select command later, just a quick glimpse. So then now from here, all important concept of SQL will start. Also, I'll try that. I'll speak in Hindi so people will understand easily. So the most basic entity of database is table. Okay, so this is very important. Uh, Creating a table, because we have to create a table so that operations can be performed. So first operation is create. So create is used to create a table in database. So इसके मदद से हम लोग एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और इसका सिंटेक्स क्या है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन कॉलम डाटा टाइप विथ, कॉलम टू डाटा टाइप विथ। मतलब क्या कि कॉलम वन का जो नाम है वो देंगे, और फिर उसका डाटा टाइप क्या है। अभी डाटा टाइप के विथ क्या क्या कौन से डाटा टाइप रह सकते हैं मैं बताऊंगा। तो फिर डाटा टाइप जैसे नंबर हो सकता है, या फिर वैरकैर हो सकता है वो, और उसका साइज कितना है, जैसे 20, 30, 40, मतलब कितने कितने। सपोज कोई एड्रेस है तो उसमें कितने डिजिट्स होने चाहिए, ये सब अपने को बताना रहेगा, तो फिर वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो फिर एग्जांपल देखते हैं क्रिएट का। क्रिएट टेबल कस्टमर, तो फिर कस्टमर नाम का एक टेबल बनेगा, और फिर उसके प्रॉपर्टीज क्या है,
उसके अंदर रहना चाहिए कॉलम जिसका नाम है नेम, और फिर उसका विड्थ कितना है, डाटा टाइप क्या है, वेर कैर, और विड्थ 30। फिर उसके बाद कस्टमर आईडी कॉमा दे के लिखने का, कस्टमर आईडी नंबर, आईडी है तो नंबर में रहना चाहिए, और फिर एड्रेस वेरकर टू, ये सब चाहिए। तो फिर एक टेबल बनेगा कस्टमर का और उसमें ये सारे प्रॉपर्टीज रहेंगे, मतलब कॉलम के हेडिंग ये रहेंगे और फिर उसके नीचे वो सारे वैल्यूज रहेंगे। फिर अभी डाटा टाइप्स कौन से रहते हैं अपने बस वो देखते हैं। नंबर में रहता है नम, फ्लोट, इंट, रियल, डेसिमल, बाइनरी, फ्लोट, एक्सेट्रा, ये कैरेक्टर के हो गए। पॉज करके देख लेना, ये डेट के और ये बुलियन के। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स वैल्यू रहते हैं वो। फिर कॉन्स्टेंट्स, अभी कॉन्स्टेंट्स क्या रहते हैं वो देखेंगे। कॉन्स्टेंट्स मतलब क्या कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस की, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं हम लोग कमांड्स पे। तो फिर वही कि जैसे कि एग्जांपल देने जाए कि यूनिक नहीं रहे, नॉट नल, नल कोई वैल्यू नल नहीं रहनी चाहिए अगर हम लोग एंटर कर रहे तो। या फिर हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो हम लोग वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो या फिर ग्रेटर देन 100 हो, ऐसा। तो फिर सपोज मार्क्स है किसी स्टूडेंट के, तो फिर वो 100 से ज़्यादा नहीं रहने चाहिए, ऐसे सारे हम लोग कॉन्स्टेंट्स लगा सकते हैं। तो फिर कॉन्स्टेंट्स क्या है देखते हैं। कॉन्स्टेंट्स आर रूल्स used to check what the values the table can accept and what the values table cannot, मतलब टेबल में कौन से वैल्यूज एक्सेप्ट, टेबल कौन से वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और कौन से नहीं। तो फिर इसमें 7 कॉन्स्टेंट्स है। तो फिर कितने कॉन्स्टेंट पूछा तो 7 वंडर्स रहते हैं, वैसे याद रखने का, इधर भी 7 है कॉन्स्टेंट्स के 7 वंडर्स। तो पहला है नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट और रिफरेंशियल कॉन्स्टेंट्स। तो फिर इसको भी हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो फिर नॉट नल का यूज़ क्या रहता है कि हम लोग जब एंटर करते हैं तो वैल्यू नल नहीं लेना चाहिए उसका। तो इसका एग्जांपल क्या है कि डेट ऑफ बर्थ, मतलब सपोज अपने पास एम्प्लॉयज़ का टेबल है और फिर उसमें एक है डेट ऑफ बर्थ, एक एट्रीब्यूट। फिर उसका किसी एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ नल तो रह नहीं सकता सब, क्योंकि हर इंसान कभी न कभी पैदा हुआ है तो फिर उसका रहेगा ही। फिर उसके बाद आता है यूनिक। तो फिर अगर हम लोग नो टू एंटिटीज इन एन एट्रीब्यूट शुड बी सेम, मतलब क्या कि सपोज एक एट्रीब्यूट है फ़ोन नंबर, तो फिर किसी दो बंदे का कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ है वो दो एम्प्लॉयज़ का फ़ोन नंबर सेम रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो फिर ये रहता है इसका यूनिक का। फिर प्राइमरी की शुड बी यूनिक थ्रू आउट द टेबल, इट शुड नॉट बी नल। प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। मतलब क्या कि प्राइमरी की पहली बात तो यूनिक रहनी चाहिए, मतलब क्या कि कोई भी दो एट्रीब्यूट, दो कोई भी दो एंटिटीज है टेबल के, जैसे फ़ोन नंबर हो गया, वो सेम नहीं रहना चाहिए। और फिर सेकेंड, इट शुड नॉट बी नल, मतलब क्या कि उसकी वैल्यू नल नहीं रहनी चाहिए। मतलब अगर हम लोग देखें कि फ़ोन नंबर है तो फिर कोई एम्प्लॉय अपना फ़ोन नंबर ना भी देना चाहिए, बराबर, कि वो ब्लैंक रखेगा, बराबर। तो फिर वो प्राइमरी की नहीं रहेगा। लेकिन प्राइमरी की का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि एम्प्लॉय का आईडी, बराबर, हर एम्प्लॉय का एक यूनिक आईडी रहेगा। तो फिर वो हो गया यूनिक। और फिर किसी हर एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ आईडी दिया रहेगा, बराबर, तो फिर वो नल नहीं रहेगा, मतलब यूनिक भी हो गया और नल भी हो गया। इसलिए यूनिक भी हो गया और नॉट नल भी हो गया। तो फिर इसलिए बोलते हैं प्राइमरी की जो कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। अभी आ गया फॉरेन की। तो फिर फॉरेन की में क्या रहता है कॉन्सेप्ट, एक रहता है मास्टर टेबल और एक डिपेंडेंट टेबल। तो फिर इफ वी हैव एट्रीब्यूट इन अ टेबल विच इज गोइंग टू रिफर टू एन एट्रीब्यूट इन अनदर टेबल देन इट इज कॉल्ड फॉरेन की। तो फिर फॉरेन की मतलब क्या कि हम लोग के पास एक टेबल है और फिर उसमें कोई एट्रीब्यूट है, वो किसी दूसरे टेबल पे डिपेंडेंट है। तो फिर उसके एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से एकदम। तो फिर ये एम्प्लॉय का टेबल है और इसमें है एम्प्लॉय आईडी, बराबर, और फिर ये डिपेंडेंट। मतलब क्या कि मतलब सपोज कि ऐसा समझो कि ये ठीक है डिपेंडेंट ही लेते हैं। तो फिर एम्प्लॉय आईडी मतलब क्या कि ये एम्प्लॉय आईडी 1 है ना, तो फिर ये डिपेंड किस पे करता है, मतलब ये बच्चे, स्कूल के बच्चे समझो डिपेंडेंट। तो फिर इससे, और ये पेरेंट्स है, तो फिर ये पेरेंट का नंबर है 1 2 3। तो फिर ये ऐसा पता चलेगा कि किसके औलाद है ईआईडी से। तो फिर ये इधर 1 दिया तो फिर ये इसको इसको पॉइंट कर रहे हैं, ये क्या है दोनों का प्राइमरी की है, इधर ईआईडी और ईआईडी, बराबर। तो फिर प्राइमरी की से हम लोग फॉरेन की में बताएंगे कि कौन से किसके वजह से हम लोग को पता चल रहा है कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। तो फिर इसका आईडी क्या है 1 और इसका भी क्या है 1। तो फिर इससे पता चलेगा कि ये
वन की औलाद है, अभी ये 10 बता रहे, तो फिर इसमें 10th, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा 10 जो भी रहेगा, तो फिर ये पता चलेगा 10 की औलाद है। ऐसा हम लोग पता कर सकते हैं फॉरेन की से। ये हो गया मास्टर और ये हो गया स्लेव, इसके बीच का हम लोग रिलेशन बता सकते हैं। ये हो गया पेरेंट और ये चाइल्ड। तो फिर इट इज यूज टू चेक इफ डिफेंडेंट एग्जाम्पल 10 इज प्रेजेंट इन एम्प्लॉय टेबल और नॉट। मतलब क्या, एग्जाम्पल प्रेजेंट इन पेरेंट टेबल और नॉट, हाँ मतलब क्या कि अगर हम लोग कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा रहे हैं तो फिर अ, अच्छा हाँ, मतलब क्या कि अगर फॉरेन की हम लोग इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको और इसको, तो फिर इधर हम लोग अगर इसको ईआईडी को फॉरेन की डिक्लेयर कर रहे हैं ना इसका, तो फिर ये 10 इसमें प्रेजेंट रहना ही चाहिए, तो ये हम लोग कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली अगर हम लोग लिख दिए कि ईआईडी और कोई भी नंबर डाल रहे, लेकिन ये फॉरेन की नहीं रहेगा, तो हम लोग अश्योर नहीं कर सकते कि 10 प्रेजेंट रहेगा कि नहीं इस टेबल में। तो फिर ये कॉन्सेप्ट है इसका फॉरेन की का। फॉरेन की अभी अच्छे से आगे भी समझेंगे क्योंकि बहुत बार आएगा। चेक, इट इज यूज टू चेक सर्टन एट्रीब्यूट्स, जैसे कि मैंने बताया था कि एज कोई नंबर नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, ऐसा अगर हम लोग को कंडीशन रख रहे तो रख सकते हैं। फिर इसका एग्जांपल है एज कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट इज वन शुड ऑलवेज एंटर पॉजिटिव वैल्यू। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स रहेंगे वो 100 से ज़्यादा ज़्यादा ना हो, मैक्स टू मैक्स 100 तक रहे। और फिर डिफॉल्ट, सपोज वी आर नॉट गिविंग एनी वैल्यू देन डिफॉल्ट वैल्यू इज टेकन। सपोज अभी अगर हम लोग कोई वैल्यू नहीं दे रहे, तो फिर जो डिफॉल्ट, अगर सपोज हम लोग को मार्क्स एंटर करने बोला है और हम लोग उसको स्किप कर दिए, तो फिर उसको डिफॉल्ट वैल्यू कुछ मिलना चाहिए ना, तो फिर हम लोग उसको ज़ीरो दे देंगे, ऐसा। फिर डिफरेंशियल कॉन्स्टेंट्स, ये बहुत मेन है, तो फिर इसको हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे। इसके ऊपर वाले के एग्जाम्पल देखते हैं, फिर एग्जाम्पल समझने के बाद ये सेवेंथ वाला अपने को इजीली समझेगा। फिर अभी हम लोग को क्या है कंडीशन, कि एक अपने पास शॉप का टेबल है, और फिर उसके कुछ एट्रीब्यूट्स पे क्या क्या हम लोग को रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं वो देखते हैं, कॉन्स्टेंट्स। तो फिर एक है शॉप आईडी, तो फिर शॉप आईडी क्या कि कभी वो नहीं हो सकती, किसी की रिपीट नहीं हो सकती, बराबर, सबकी यूनिक रहेगी। तो फिर वो हो गया प्राइमरी की, मतलब किसी दो शॉप वालों की आईडी सेम नहीं रहेगी। शॉप नेम, तो शॉप नेम क्या है, यूनिक। यूनिक की मतलब क्या, ये यूनिक क्यों रहेगा, क्योंकि उन पे डिपेंड है ना कि एक तो यूनिक का डेफिनेशन देखते हैं पहले, और फिर उसके साथ देखो। हाँ ठीक है, अभी किधर गया वो, क्रिएट। अच्छा सॉरी, लैपटॉप हैंग हो गया था थोड़ा। तो फिर यूनिक की डेफिनेशन क्या है कि नो टू एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट शुड बी सेम, बराबर। तो फिर अपने लोग, अगर हम लोग किसी का दुकान का नाम दे रहे एरिया में, तो फिर थोड़ी ना पागल है कोई कि दुकान का नाम सेम रखेगा, बराबर, तो सबके अलग अलग रहेंगे। और फिर प्राइमरी के लिए क्या था कि दुकान का आईडी, शॉप नंबर 1 शॉप नंबर 2, अभी ये तो सबका अलग ही रहेगा, बराबर, कि किसी का क्या बोलते हैं, किसी का सेम नहीं रहेगा। और फिर हर दुकान को कोई ना कोई शॉप नंबर असाइन किया हुआ रहेगा, मतलब ये नॉट नल को भी सेटिस्फाई करेगा। बट शॉप नेम के केस में कंपलसरी नहीं है, कुछ लोग दुकान का नाम ही नहीं रखेंगे, जस्ट शॉप नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे, शॉप नंबर 23 में आ जाओ वगैरह ऐसा। तो फिर इसीलिए उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। वापस हैंग हो गया क्या, एक्चुअली बहुत लैग कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो फिर अच्छा रुको, देखने दो मेरे को। ओके, तो फिर स्क्रॉल बहुत स्लो करना है, ये आइडिया पता चल गया, लैग ना करने के लिए। तो फिर अभी शॉप आईडी हम लोग ने देखा कि प्राइमरी रहना चाहिए, क्योंकि उसका वैल्यू कभी नल नहीं रहेगा, और कोई दो दुकान वालों का शॉप नंबर सेम नहीं रहेगा। फिर शॉप नेम यूनिक रहेगा, क्योंकि किसी दो दुकान वालों का नाम सेम नहीं रहेगा, बट उन नल नल रह सकते हैं, क्योंकि उन पे डिपेंड करता है कि उनको नाम रखना है कि नहीं। और फिर लोकेशन तो नॉर्मल है अपना। तो फिर इसको क्रिएट कैसे करेंगे, देखो, क्रिएट टेबल, उस टेबल कौन सा, शॉप्स का, शॉप आईडी, नंबर, नंबर चाहिए अपने को।
फिर प्राइमरी, इसको हम लोग को प्राइमरी डिक्लेयर करना है शॉप आईडी को, तो फिर इसके आगे लिखेंगे प्राइमरी की, फिर कॉमा शॉप नेम, और फिर शॉप नेम क्या है, उसका डाटा टाइप नेम है मतलब वर्कर टू, और फिर साइज रख दिया 30, और फिर इसको हम लोग को यूनिक डिक्लेयर करना है इसलिए यूनिक लिखा, फिर लोकेशन, और फिर वर्कर टू, और फिर 100, मतलब ये नॉर्मल है अपना। फिर इससे हम लोग ने क्रिएट किया टेबल। फिर इसके बाद ओके, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कांस्टेंट डिफाइन कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा ही। तो फिर कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एट टू लेवल्स, एक तो हम लोग कॉलम लेवल पे कर सकते हैं और एक टेबल लेवल पे कर सकते हैं। फिर लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्लियरली विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो फिर एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अभी देखो, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी नंबर प्राइमरी की, तो फिर ये नंबर के जस्ट आगे लिखा हम लोग ने प्राइमरी की, तो ये हो गया क्या अपना कॉलम लेवल। क्योंकि अगर हम लोग जो कॉलम का मतलब जो एट्रीब्यूट है उसको हम लोग डिफाइन करते वक्त ही उसके सामने लिख रहे कि उसका कांस्टेंट क्या है, तो फिर इसको बोलेंगे हम लोग कॉलम लेवल। फिर इसके बाद लिखा डिपार्टमेंट नेम वर्कर टू, लोकेशन वर्कर टू, और यूनिक। अभी सब खत्म होने के बाद हम लोग, अभी इधर सारे हम लोग ने डिक्लेयर करके हो गए ये पॉइंट पे बराबर, लोकेशन वर्कर टू के। फिर इसके बाद हम लोग एंड में बता रहे कि हम लोग को क्या क्या कांस्टेंट किधर लगाने, तो फिर एंड में बता रहे कि यूनिक जो है वो हम लोग को डिपार्टमेंट नेम पे यूनिक लगाना है, तो फिर यूनिक और उसके अंदर किस किस पे लगाना है वो हम लोग बता सकते हैं। तो फिर ये नॉर्मल अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे कि नंबर प्राइमरी की, ये हो गया अपना क्या कॉलम लेवल कांस्टेंट, मेंशनिंग कांस्टेंट अलोंग विद एट्रीब्यूट, वो हो गया कॉलम लेवल कांस्टेंट। और मेंशनिंग कांस्टेंट आफ्टर स्पेसिफाइंग ऑल द एट्रीब्यूट, मतलब सारे एट्रीब्यूट इस पॉइंट पे 100 लिखा है वहाँ पे ख़त्म हो गए। उसके बाद हम लोग जो कांस्टेंट मेंशन करते हैं, जैसे कि ये यूनिक है कौन, डिपार्टमेंट नेम, इसलिए वेव वाले अंडरलाइन में लिखा, तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे टेबल लेवल कांस्टेंट। ठीक है, ये हम लोग ने टेबल और कॉलम लेवल क्या रहते हैं देख लिया। तो फिर अभी एक नोट नोट क्या लिखे, नॉट नॉट नल कांस्टेंट शुड बी ऑलवेज बी डिफाइंड एट कॉलम लेवल, और कंपोजिट की शुड बी डिफाइंड एट टेबल लेवल। तो फिर इसका भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कंपोजिट की, अभी कंपोजिट की क्या रहती है कि हम लोग को अगर कुछ यूनिक बनाना है, तो फिर जैसे कि हम लोग को दो दो चीज़ें साथ में यूज़ करके किसी चीज़ को यूनिक बनाना है। जैसे इसके एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि हम लोग को एक हम लोग के पास एक कॉलेज स्टूडेंट्स स्कूल के स्टूडेंट्स है, और फिर उसके बाद हम लोग को सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो फिर और उसमें क्या है कि हम लोग को सिर्फ रोल नंबर से पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट किधर का है, बराबर। हम लोग को क्लास भी चाहिए, जैसे कि क्लास 1 में है और फिर उसका रोल नंबर क्या है। तो फिर हम लोग को दो चीज़ें लेने पड़ेगी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, पहले की स्टैंडर्ड और फिर उसके बाद रोल नंबर, क्योंकि सिर्फ रोल नंबर से पता नहीं चलेगा कि वो कौन से क्लास का है। तो फिर इसीलिए तो फिर अगर हम लोग को एक से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसको यूनिक डिक्लेयर करने के लिए, तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे कंपोजिट की। ये हो गया कंपोजिट की। और फिर इसके बाद अभी हम लोग इसके एग्जांपल देखते हैं कि नॉट नल शुड ऑलवेज बी डिफाइंड एट कॉलम लेवल, और फिर कंपोजिट की रहेगी वो हम लोग को टेबल लेवल पे। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो फिर एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय आईडी क्या है, प्राइमरी की, एम्प्लॉय नेम नॉट नल, और फिर जॉब, ये मतलब रिक्वायरमेंट्स है, और इसकी क्वेरी हम लोग कैसे लिखेंगे देखते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट आईडी प्राइमरी की, एम्प्लॉय नेम नॉट नल, जॉब डिपार्टमेंट आईडी रिफर्स डिपार्टमेंट आईडी ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजर्स, और फिर उसके बाद सैलरी रहने चाहिए ग्रेटर देन 5000, और फिर कमीशन एक एट्रीब्यूट है, इफ नॉट गिवन डिफॉल्ट वैल्यू इज 100। ये सब अपने को करना है। और ईमेल और फोन मतलब क्या कि हाँ, किसी बंदे का ईमेल सेम रह सकता है दो बंदों का, या फिर किसी दो बंदों का फोन सेम रह सकता है, फोन नंबर, जस्ट इन केस मतलब रिपीट हो रहा है तो, बट दोनों साथ में सेम नहीं रहेगा, मतलब ऐसे ही बताया। एक्चुअली ईमेल और फ़ोन नंबर भी यूनिक रहता है इंडिविजुअली, बट जस्ट समझने के लिए ईमेल और फ़ोन नंबर साथ में मिलके ही यूनिक बनेंगे, कंपोजिट की का काम करेंगे। तो फिर राइट एसक्यूएल क्वेरी फॉर अबव रिक्वायरमेंट, तो फिर इधर बताया देखो, सेंस तो नहीं बनाते ये लाइन, बट अपने को बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। Also, we have to refer department ID from department table. For this purpose, we will use referential constant. तो फिर referential constant कैसे यूज करते हैं वो भी देखेंगे। तो फिर अभी अपना
एसक्यूएल क्वेरी क्या है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, बराबर अपने को एम्प्लॉय टेबल बनाना है, एम्प्लॉय आईडी नंबर प्राइमरी की, मतलब इसको हम लोग ने कॉलम लेवल पे प्राइमरी की डिक्लेयर किया, एम्प्लॉय नेम varchar 30 नॉट नल, अभी नॉट नल भी हमेशा हम लोग को इसके साथ ही करना है डिक्लेयर कॉलम लेवल पे, एंड में भी कर सकते हैं बट उसका मतलब नहीं है करके। ये हो गया। तो फिर ये अच्छी प्रैक्टिस है कि जब हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं उसी के साथ डिक्लेयर को बता दो कि ये नॉट नल रहना चाहिए। फिर डिपार्टमेंट आईडी नंबर रेफरेंसेस डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट आईडी, मतलब क्या कि मतलब एम्प्लॉय का जो डिपेंडेंट आईडी है उसका टाइप क्या है, नंबर, और फिर इसके बाद रेफरेंसेस मतलब किसको रिफर कर रहा है वो, डिपार्टमेंट टेबल लेके अलग उसकी डिपार्टमेंट आईडी को, मतलब एम्प्लॉय का जो टेबल है, मतलब कि सपोज कि ये दो टेबल है, ये है डिपार्टमेंट का, ये हो गया डिपार्टमेंट का, और ये और एक टेबल, तो फिर ये हो गया एम्प्लॉय का, बराबर। तो फिर ये डिपार्टमेंट इसमें कुछ रहेगा 1 2, और इसमें एम्प्लॉय से इसमें एक डिपार्टमेंट आईडी रहेगा, ये भी डिपार्टमेंट आईडी है, ये डिपार्टमेंट आईडी होगी और ये भी होगी डिपार्टमेंट आईडी। तो फिर हर एम्प्लॉयज के लिए हम लोग बताएंगे कि सपोज ये इधर एक एम्प्लॉय आईडी रहेगी, एम्प्लॉय आईडी, तो फिर एम्प्लॉय आईडी में अगर रहेगा एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4, और इसमें हम लोग बता सकते हैं कि ये किस पे काम कर रहा है, 1 पे 2 पे 2 पे, तो फिर इधर ये इसको क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है ऐसा, बराबर। इसको ये वाला इस डिपार्टमेंट आईडी को रिफर कर रहा है, बराबर। तो फिर इससे क्या पता चल रहा है, हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। तो फिर ये क्या हो गया, पेरेंट पेरेंट टेबल, और ये हो गया चाइल्ड टेबल, ठीक है। तो फिर ये ऐसा हो गया, एकदम अजीब सा बन गया बट अपने को कॉन्सेप्ट समझा उससे मतलब है। तो फिर ये ऐसा अपना रहेगा। तो फिर ये एम्प्लॉय टेबल चाइल्ड चाइल्ड टेबल है, एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट आईडी, और ये मास्टर टेबल का है। तो फिर ये एक्ट करता है फॉरेन, डिपार्टमेंट आईडी है ये फॉरेन की का, एज अ फॉरेन की एक्ट करता है। तो फिर इधर ही हम लोग ने ऐसे बता दिया कि हाँ ये फॉरेन की है। फिर इसके बाद जॉब वेरकेर टू 30, ये नॉर्मल से है, मैनेजर भी उसका नाम भी वेरिएबल वेर कैरेक्टर में रहेगा। फिर उसके बाद सैलरी नंबर, अभी सैलरी है वो हम लोग को चेक करनी है कि जो सैलरी है वो ग्रेटर देन 5000 है क्या, बराबर, जो एंटर कर रहे हो। और फिर इसके बाद इसलिए हम लोग ने चेक कंडीशन लगाया इधर ही। और फिर इसके बाद कमीशन नंबर, मतलब अगर सैलरी 5000 से बड़ी नहीं रहेगी, अगर 2000 डाल रहे तो एरर दे देगा, लेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा इनपुट। फिर कमीशन नंबर डिफॉल्ट 100, मतलब क्या कि अगर कमीशन नहीं दिया, कुछ भी हम लोग ने डाला ही नहीं, कितना रहेगा 500 400 या फिर 50, तो फिर डिफॉल्ट वो 100 ले लेगा। और फिर ईमेल वेरकर टू, ये नॉर्मल अपना कैरेक्टर वाला। फिर फोन वेरकर टू, तो ये हम लोग ने डिफाइन किया ईमेल और फोन को। और फिर एंड इधर अपने सारे एट्रीब्यूट्स खत्म हो गए, बराबर, फोन वेरकर टू 13 पे। फिर एंड में हम लोग बता रहे कि यूनिक क्या क्या है, ईमेल और फोन, बराबर। यूनिक में ईमेल कॉमा फोन, ये एज अ कंपोजिट की एक्ट करेगा, ऐसा हम लोग बता सकते हैं। ये हो गया अपना टेबल लेवल, और जो अंदर अपना हम लोग ने बताया इतने सारे किए वो था अपना कॉलम लेवल। फिर इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कमांड है इंसर्ट। तो फिर हम लोग को अगर टेबल में कुछ इंसर्ट करना है तो फिर हम लोग इस कमांड से कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, फिर एट्रीब्यूट वैल्यू 1 और एट्रीब्यूट वैल्यू 2। तो फिर अभी हम लोग का सपोज ये टेबल बन गया है डिपार्टमेंट, इसमें एट्रीब्यूट्स का डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन। तो फिर इसमें अगर हम लोग को कुछ इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, तो फिर ये डिपार्टमेंट और फिर वैल्यूज लिखेंगे, टेबल का नाम लिखा वैल्यूज, और फिर जो वैल्यूज है इसके हिसाब से इस ऑर्डर में वही हम लोग डाल देंगे इसमें कि 1 CSE और हैदराबाद। तो फिर इधर ऐसे आएगा 1 CSE और हैदराबाद, इधर आ गया।
सपोज ये एम्प्टी टेबल है शुरू में, ये आउटपुट बाद में आएगा। वन सीएससी और हैदराबाद आ गया, नीचे के मत देखो फिलहाल। फिर ऐसे अगर हम लोग एंटर कर रहे हैं तो फिर एट्रीब्यूट्स के वैल्यू शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट लिस्ट, मतलब क्या कि ऊपर जो एट्रीब्यूट लिस्ट है उसी के ऑर्डर में हम लोग को एट्रीब्यूट इंसर्ट करना है। बट ऐसा अगर हम लोग को नहीं करना है तो और एक तरीका है अपने पास, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द एट्रीब्यूट लिस्ट। मतलब क्या कि number of attribute value should be equal to number of attribute in attribute list। मतलब क्या कि हाँ, इस ऐसा अगर हम लोग कर रहे हैं ना तो फिर इसमें जो एट्रीब्यूट लिस्ट में जितने वैल्यूज थे और इसमें भी हम लोग को उतने ही करना है। बट अभी सिंटेक्स 2 से देखेंगे तो ये अलग है। तो फिर इंसर्ट इनटू टेबल नेम, मतलब टेबल का नाम लिखेंगे और फिर इसके बाद जो एट्रीब्यूट्स के नाम है वही लिखेंगे हम लोग, और फिर वैल्यूज, फिर उसके जो हम लोग को वैल्यू देने वो। तो फिर इसका एक फायदा क्या है कि हम लोग वैल्यू स्किप कर सकते हैं, कि जैसे कुछ नहीं डालना तो नहीं भी डाल सकते, क्योंकि हम लोग टेबल का नाम बता, एट्रीब्यूट कॉलम का नाम बता रहे हैं इसमें, तो फिर वो बराबर ले लेगा। तो फिर इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन, वैल्यूज टू इसी केजीपी। मतलब ये इंसर्ट हो गया। हम लोग चाहिए तो इसका ऑर्डर भी हम लोग डिफरेंट लिख सकते हैं, जैसे कि लोकेशन पहले लिख लिया तो फिर नीचे भी केजीपी पहले लिखेंगे, तो फिर वो बराबर जिधर जाना है उधर ही चला जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले केजीपी लिखा तो इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो फिर इसके बाद है कि इसका मेन यूज क्या, जैसे मैंने बताया स्किप कर सकते हैं वैल्यूज को। फिर इसके बाद इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, इसका एग्जांपल है कि डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट ना, यहाँ पे हम लोग ने लोकेशन स्किप किया तो फिर इधर क्या आएगा, वैल्यूज 3 और ई ट्रिपल ई। तो फिर ये देखो 3 और ई ट्रिपल ई, और इधर जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी अपनी, या फिर नल हम जो कांस्टेंट सेट किया रहेगा उसके हिसाब से इधर चला जाएगा वो वैल्यू। अगर कुछ किया रहेगा डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट, अगर नहीं किया तो नल। अब इसके बाद आता है डिलीट एंड अपडेट। तो फिर डिलीट कमांड को, डिलीट से हम लोग जो डाटा है वो हम लोग अपने टेबल से डिलीट कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, पूरा टेबल हो सकता है या फिर कोई एक एंट्री हो वो। तो फिर इसके बाद इट कैन बी यूज टू डिलीट वन रो, मल्टीपल रो और एंटायर टेबल। तो इसका सिंटेक्स क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। मतलब कि अगर ये अपना टेबल है सपोज ये वाला डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, फिर डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम पी आई डी इज इक्वल टू वन। तो फिर इसमें ये जो वन वाला है ये एम पी आई डी इज इक्वल टू वन, ये पूरा रिकॉर्ड चला जाएगा। बराबर, सिर्फ ये दो ही रहेंगे क्योंकि ये हम लोग ने बताया डिलीट करना है। फिर डिलीट स्टार फॉर फ्रॉम ईएमपी, इससे क्या होगा कि पूरा ईएमपी टेबल है, स्टार मतलब क्या, एवरीथिंग ऑल, तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स इसमें से ईएमपी से डिलीट हो जाएंगे। अभी ड्रॉप से क्या होता है कि सिर्फ इससे क्या होगा डिलीट से कि अंदर के सारे रिकॉर्ड्स चले जाएंगे, लेकिन टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको कुछ नहीं होगा। पर ड्रॉप से, अभी ड्रॉप हम लोग अलग कमांड है, इससे क्या होगा डिलीट बोथ डाटा एंड टेबल, मतलब कि अंदर का डाटा भी जाएगा और टेबल भी हमेशा के लिए चला जाएगा। इसका सिंटेक्स क्या है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, मतलब क्या कि ड्रॉप टेबल ईएमपी अगर करेंगे तो फिर ये एम्प्लॉय टेबल हमेशा के लिए चला जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि एम्प्लॉय टेबल एग्जिस्ट करता था। उसका मतलब सारे का सारा नामो निशान है, उसके सारे एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टीज वगैरह सब डिलीट हो जाएगा। फिर इसका अभी एक प्रॉब्लम्स क्या है, इश्यूज। तो फिर डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू वन। तो फिर अगर हम लोग डिपार्टमेंट आईडी वन डिपार्टमेंट से डिलीट कर रहे हैं तो फिर इसे पढ़ लेते हैं। Here referential integrity constraint get violated cause when there is a foreign key whatever value are we are talking taking a department table should be present in master table, that is we can't delete that value from master table। okay, तो फिर अभी अगर किधर गया वो डिपार्ट, हाँ, तो फिर ये क्या है, ये डिपार्टमेंट टेबल है और ये मास्टर टेबल है और ये डिपेंडेंट टेबल है, बराबर। तो फिर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से कोई वैल्यू डिलीट कर रहे हैं, सपोज सपोज यहाँ से हम लोग कोई थ्री, ये थर्ड अपना डिपार्टमेंट है वो डिलीट कर रहे हैं, बराबर। तो फिर थर्ड डिपार्टमेंट डिलीट कर रहे तो फिर इसका क्या होगा, ये जो थर्ड एम्प्लॉय मतलब जो बता रहा है कि पहला वाला कि मैं थर्ड डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, फिर ऐसा हम लोग डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट है कि हम लोग को बताना पड़ेगा कि अगर ये डिलीट कर रहे हैं तो फिर ये किसको पॉइंट करेगा, ये डिपार्टमेंट थ्री को पॉइंट कर रहा है ना, तो फिर इसको हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये किसको पॉइंट करेगा ऐसा, या फिर इसका क्या होगा, इसको भी डिलीट करना है या नल डिक्लेयर करना है, ये सारी चीज़ें अपने को बतानी पड़ेगी।
इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्योंकि अगर फॉरेन की रहेगा तो ये प्रॉब्लम आएगा ही कि हम लोग डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते, कुछ एरर देगा जब तक हम लोग कुछ बताते नहीं कि जो उसका मास्टर में जो उसका डिपेंडेंट्स है उसके साथ क्या करना है, अगर हम लोग जब तक स्पेसिफाई नहीं करते तब तक ये इश्यू देगा ही। फिर आफ्टर यूजिंग ड्रॉप वी कैन नॉट यूज इंसर्ट। मतलब क्या कि अच्छा हाँ, मतलब क्या कि सपोज हम लोग ने टेबल ड्रॉप कर दिया, मतलब पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो गया बराबर, तो फिर हम लोग इंसर्ट कमांड यूज नहीं कर सकते। सपोज एक एम्प्लॉय टेबल एग्जिस्ट करता है बराबर, ये ऊपर वाला ही देखो, तो फिर सपोज ये एम्प्लॉय टेबल को हम लोग ने डिलीट किया, लेकिन इसके एट्रीब्यूट्स रहेंगे, इसका स्ट्रक्चर रहेगा, तो फिर इसमें हम लोग डिलीट करने के बाद इंसर्ट कर सकते हैं वापस वैल्यू। बट अगर ड्रॉप किया तो इसका सब कुछ चला जाएगा, स्ट्रक्चर डाटा, तो फिर इसमें इंसर्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, फिर ये हो गया। फिर ड्रॉप इज आल्सो लाइक डिलीट लीड्स टू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, मतलब वही कि किसी को रिफर कर रहा रहेगा मास्टर टेबल वाला, तो फिर हम लोग डायरेक्ट ड्रॉप नहीं कर सकते। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट को लीड करता है वो। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट कमांड अपडेट। फिर इट इज यूज फॉर अपडेटिंग द डाटा। फिर अपडेट टेबल नेम सेट एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू वेयर कंडीशन, मतलब क्या कि अगर अपने को टेबल की कोई वैल्यू अपडेट करनी है, जैसे कि मेरा नाम अगर गोविंद है तो फिर उसको चेंज करके मेरे को गौरव करना है, और कुछ कंडीशन देने का कि अगर रोल नंबर 10 रहेगा तो फिर उस बंदे का नाम जो भी रहेगा उसको चेंज करके गोविंद कर दो। ऐसे हम लोग को कुछ कंडीशंस वगैरह देके अगर अपडेट करने तो अपडेट कमांड को यूज कर सकते हैं। फिर इसके एग्जांपल देखते हैं। अपडेट डिपार्टमेंट सेट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू आईडी वेयर लोकेशन इज इक्वल टू केजीपी, मतलब क्या कि जहाँ पे टेबल में लोकेशन केजीपी रहेगा वहाँ पे क्या कर दो, डिपार्टमेंट नेम आईटी कर दो, तो फिर वहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा, आईटी रीनेम होके आईटी हो जाएगा। फिर इसके बाद है एग्जांपल अपडेट सेट ईएमपी डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 1 वेयर ईएमपी आईडी इज इक्वल टू 2, मतलब क्या कि जहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी 2 रहेगी वहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी क्या कर दो, 1 डाल दो बराबर। ऐसे हम लोग को कंडीशंस देख के करना है, मतलब जहाँ पे एम पे आई डी टू पहले देखेगा कि कौन सी टू है, फिर अगर कोई रिकॉर्ड मिला, जो भी रिकॉर्ड मिले उसके डिपार्टमेंट आईडी वन कर देगा। फिर अपडेट डिपार्टमेंट सेट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 4 वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू ट्रिपल ई, मतलब क्या कि डिपार्टमेंट टेबल में हम लोग को क्या करना है, डिपार्टमेंट आईडी 4 कर देना है, जहाँ पे डिपार्टमेंट नेम क्या रहेगा, ट्रिपल ई। यूजिंग अपडेट आल्सो लीड्स टू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, तो फिर इससे इससे क्या होगा पता है क्या, अभी दिखाता हूँ तुम लोग को। हाँ, फिर ये डिपार्टमेंट टेबल है, तो फिर इसका डिपार्टमेंट का नाम क्या है, ट्रिपल ई बराबर, तो फिर इसको अगर हम लोग 4 कर देंगे, 3 को 4 बराबर, तो फिर क्या होगा कि ये 3 को पॉइंट करते हैं बराबर, ये तो बोलेगा कि भाई मैं किसको पॉइंट कर रहा हूँ, 3 तो 3 नाम का कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं। इसको अगर हम लोग 4 करेंगे तो वापस ये भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट को लीड करेगा, मतलब ये अपडेट में भी ये इश्यू होता ही है। अभी हम लोग ने देखे कि कहाँ का ये प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, तो फिर इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो फिर डिफरेंशियल कांस्टेंट्स allow us to further describe the relationship between reference column and the objective references by attaching a referential trigger action to the foreign key, मतलब क्या कि अगर हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंडीशन लगा देंगे उस फॉरेन की पे जब हम लोग क्रिएट कर रहे तो ही तभी कि अगर कुछ उसका जो मास्टर से डिलीट हो रहा है तो हम लोग को क्या करना है। तो फिर इसको अभी देखते हैं, दैट इज ये चेक करता है कि मास्टर टेबल में जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट टेबल में है क्या, मतलब मास्टर टेबल की सबसे पहले क्या होगा पता है इसमें कि रेफरेंशियल कांस्टेंट्स में कि वो पहले चेक करेगा कि अगर मास्टर टेबल में कोई वैल्यू है उस पर हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फिर देखेगा कि वो डिपेंडेंट टेबल में है क्या, और है तो मास्टर टेबल से वैल्यू को डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। अगर मतलब डिपेंडेंट टेबल में वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो फिर अब ये मास्टर टेबल है और ये डिपेंडेंट टेबल है, तो फिर मास्टर टेबल में सपोज इधर कोई वैल्यू रहेगी,
ये मास्टर टेबल है और ये है डिपेंडेंट टेबल, तो फिर इसमें कोई वैल्यू रहेगी ये, और तो फिर हम लोग को ये अगर डिलीट करना है तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि हाँ भाई ये किधर एग्जिस्ट करती है क्या। तो फिर अगर हम लोग को किधर मिल गई है वो वैल्यू, ये वाली सपोज हम लोग को ये डिपेंडेंट टेबल में ये वैल्यू मिल गई, तो फिर हम लोग को मास्टर टेबल से डिलीट नहीं कर सकते ऐसा। तो फिर हम लोग को कुछ कॉन्फिडेंस लगाना पड़ेगा। तो फिर थ्री ट्रिगर्ड एक्शंस क्या है इसमें कि ऑन डिलीट और ऑन अपडेट, बराबर। पहला तो ये है कि ऑन डिलीट पे क्या करेंगे और ऑन अपडेट पे क्या करेंगे। मतलब कि अगर हम लोग वैल्यू डिलीट कर रहे हैं, जैसे हम लोग ने आप पिछले पेज पे डिस्कस किया था कि डिलीट करने पे भी हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट को डिलीट करते हैं और अपडेट करने को भी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वो जो डिपेंडेंट टेबल में वैल्यू है उसको एक तो नल सेट कर सकते हैं या फिर कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देंगे उसको, या सेट कैस्केड। सेट कैस्केड मतलब क्या कि जो मास्टर टेबल में जो चेंजेस हुए, सपोज थ्री को डिपार्टमेंट थ्री को पॉइंट कर रहा था तो फोर अपडेट करके फोर किया, तो फिर भाई वो जो डिपेंडेंट टेबल वाला बोलेगा मैं थ्री में था तो फिर मैं भी अभी फोर में हो गया। तो फिर इसका एग्जांपल अभी, इसका भी देखो, सेट नल क्या करता है। अगर मास्टर टेबल में डिलीट कर रहे हैं तो डिपेंडेंट टेबल में सेट नल सेट करना पड़ेगा। मतलब क्या कि मास्टर टेबल से हम लोग ने अगर कुछ डिलीट किया तो डिपेंडेंट टेबल में उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक नल हो जाएगी। मतलब जिसको सपोज कि मास्टर टेबल में डिपार्टमेंट थ्री था और डिपेंडेंट टेबल है वहाँ पे भी वो डिपार्टमेंट थ्री को पॉइंट कर रहा था, तो अगर मास्टर से हम लोग थ्री डिलीट कर रहे हैं तो फिर डिपार्टमेंट थ्री क्या करेगा, नल हो जाएगा। या फिर मास्टर मास्टर टेबल में थ्री को अपडेट करके फोर किया और हम लोग ने प्रॉपर्टी सेट नल डिफाइन की है, तो फिर वो क्या करेगा कि खुद नल बन जाएगा, किसी को पॉइंट ही नहीं करेगा। फिर इसके बाद हो गया सेट डिफॉल्ट। अगर मास्टर टेबल में डिलीट कर रहे हैं तो डिपेंडेंट टेबल में जो उस पर डिपेंडेंट वैल्यू है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो सेट, मतलब जो हम लोगों ने डिफॉल्ट वैल्यू दी रहेगी ये टेबल क्रिएट करते वक्त या फिर जो भी रहेगा, फिर वो हम लोग को दे देना है। जैसे कि मैंने बताया पहले ही कि डिफॉल्ट वैल्यू अगर कुछ ऐसा हो गया, ये वर्स्ट के सिनेरियो में अगर कोई मास्टर टेबल से कुछ डिलीट कर दिया तो मेरी डिफॉल्ट वैल्यू ये कर दो। सपोज कि एक कोई है बड़ा डिपार्टमेंट वन, और फिर मैं बता रहा हूँ कि हाँ भाई पूरे टेबल में कोई भी डिपार्टमेंट डिलीट हो गया तो फिर वो एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट वन में असाइन करना है ऐसा। फिर सेट कैस्केड, अगर हम मास्टर टेबल में चेंजेस किए तो वही सेम चेंजेस डिपेंडेंट टेबल में भी करने हैं, बराबर। मतलब कि मास्टर में जो चेंजेस हो गए वही डिपार्टमेंट इसमें भी होगा। फिर अब इसका देखते हैं। किधर गया, ओके। तो फिर अभी एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये तो टेबल है डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का। तो फिर इसके बाद अब इसमें क्या करेंगे, डिपार्टमेंट आईडी नंबर रेफरेंसेस डिपार्टमेंट आईडी। अच्छा, मतलब ये क्या है कि डिपार्टमेंट आईडी नंबर, अच्छा मतलब ये एम्प्लॉय का जो डिपेंडेंट आईडी है वो जिसका टाइप है नंबर रेफरेंसेस डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट आईडी, मतलब डिपार्टमेंट टेबल का डिपेंडेंट आईडी है वो। तो फिर डिपार्टमेंट आईडी है वो, तो फिर ये क्या हो गया, फॉरेन की हो गया ये एमपी आईडी और डिपार्टमेंट आईडी। ये दो डिपार्टमेंट आईडी है और ये डिपार्टमेंट आईडी जो है ये क्या हो गया, फॉरेन की हो गया। इससे अपने को वो पता चला। फिर ऑन डिलीट सेट नल, ऑन अपडेट सेट नल। मतलब सेट नल का एग्जांपल है कि अगर मतलब इसमें ये जो दो दो है डिपार्टमेंट आईडी इधर का और इधर का डिपार्टमेंट आईडी, तो यहाँ से कोई डिलीट कर रहे और वो इधर प्रेजेंट करता है तो फिर इसकी वैल्यू हम लोग नल कर देंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट, मतलब इधर से कुछ हम डिलीट कर रहे हैं वेर डिपेंडेंट आईडी इज इक्वल टू वन। तो फिर अगर ये वन हम लोग ने डिलीट किया, बराबर, ये वन जो सी एस सी है, तो फिर इधर जो भी वन वाला है मतलब कि एम्प्लॉय सिक्स, ये भी क्या करेगा, डिपार्टमेंट आईडी अपनी बताएगा कि हाँ मेरा नल है। और फिर इसके बाद अपडेट डिपार्टमेंट, सेकंड क्वेरी के अपडेट डिपार्टमेंट सेट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू सेवन। मतलब क्या, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू सिक्स, मतलब कि इधर सिक्स है तो फिर अब इसका डिपार्टमेंट आईडी सेवन हो जाएगा। तो फिर इधर भी क्या करेंगे हम लोग सिक्स को मतलब ये फोर वाला है जो डिपार्टमेंट सिक्स को पॉइंट करते हैं उसको हम लोग नल बना लेंगे। सेट डिफॉल्ट का देखते हैं।
तो फिर इसमें क्या है, डिपार्टमेंट आईडी नंबर, मतलब डिपार्टमेंट आईडी नंबर डिफॉल्ट 3, मतलब इधर पता है कि डिफॉल्ट डिपार्टमेंट का हम लोग का आईडी 3 रखना है। डिफरेंसेस डिपार्टमेंट आईडी, मतलब ये भी फॉरेन की है। और फिर ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट, ऑन अपडेट सेट डिफॉल्ट, मतलब क्या कि अगर हम लोग डिलीट या अपडेट कर रहे हैं तो फिर डिफॉल्ट डिपार्टमेंट नंबर 3 को हम लोग को पॉइंट करना है। फिर इसके बाद आ गया अभी हम लोग स्किल क्वेरी देखेंगे, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 2। मतलब क्या कि डिपार्टमेंट आईडी 2 अगर हम लोग डिलीट करेंगे सारे, ये 2 हो गया और ये 2 वाला हो गया, डिपार्टमेंट आईडी 2 है, तो फिर इसको अगर हम लोग इसमें ये पूरा डिपार्टमेंट आईडी 2 डिलीट कर दिए इस सी का, तो फिर जो जो इसको पॉइंट करना है जैसे कि ये, तो फिर ये अभी 3 को पॉइंट करने लगेगा ऐसा। फिर और क्या, अपडेट डिपार्टमेंट सेट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 8 वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 3। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग ने जो डिफॉल्ट लिया है, मतलब डिफॉल्ट किया अपना 3 बराबर, तो फिर उसको हम लोग अपडेट नहीं कर सकते। इधर क्या बता रहे हैं कि जो जिधर डिपार्टमेंट आईडी 3 मिल रहा है उसको अपडेट कर दे करके 8 कर दो, फिर ऐसा हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफॉल्ट है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके बाद आता है सेट कैस्केड। तो फिर डिपार्टमेंट आईडी नंबर रेफरेंसेस डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट आईडी, तो फिर डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी को रिफर कर रहा है, तो फिर फॉरेन की हो गया ऑन डिलीट सेट कैस्केड, ऑन अपडेट सेट कैस्केड। तो यहाँ पे क्या करेगा कि मतलब जो हम लोग कर रहे हैं कि डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 4, और फिर इसके बाद अब डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 4, मतलब डिपार्टमेंट आईडी जहाँ जहाँ 4 है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं बराबर। अ, ये 4 वाला, तो फिर अभी क्या करेंगे हम लोग, एम्प्लॉयज के भी 4 वाले सारे डिलीट कर देंगे, तो फिर 4 वाला कौन सा है, ये थर्ड, फिर थर्ड एम्प्लॉय को भी हम लोग निकाल देंगे, सपोज कॉलेज से हम लोग निकाल दिए ऐसा। और फिर इसके बाद क्या है, सेकंड अपडेट डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 9 वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 5, मतलब जहाँ डिपार्टमेंट आईडी 5 है वहाँ पे 9 कर दो। मतलब क्या कि यहाँ पे सी का केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 5 है, तो फिर उसको अपडेट करके हम लोग 9 कर देंगे, तो फिर यहाँ पे भी क्या होएगा कि ये जो फिफ्थ एम्प्लॉई है वो फिफ्थ डिपार्टमेंट को रिफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। ऐसा कैस्केड काम करता है, सेट कैस्केड। फिर हम लोग क्या है कि वी कैन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स टुगेदर, मतलब कि ऐसा बता सकते हैं हम लोग कि ऑन डिलीट नॉट नल रख दो, और फिर ऑन अपडेट के सेट कैस्केड रख दो ऐसा। ऐसा हम लोग बहुत सारे कॉन्स्टेंट साथ में यूज कर सकते हैं। तो फिर अभी आगे का बाद में देखेंगे।